अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे, और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी, या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहले ही बाहर हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो, ये गलत बात है। मैं संक्षेप में इंग्लिश में फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट समराइज व्हाट आई हैव सेड इन इंग्लिश. As Mr. Venugopal has said, this delegation of all these people standing here with us, we had a detailed representation to the Election Commission. We have told them and we have demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order. A order akin to writing 2 + 2 = 7, not 5. Why do I say so? The Election Commission own law, the Representation of People's Act, has a section 33A which says that you have to disclose. This is a requirement of only disclosure. But first you have to disclose only those cases which have a punishment of more than 2 years. But above all, only those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges. Now, as a kindergarten or first year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless, may have no legs to stand on. So the second stage is the taking of cognizance by the magistrate, a judicial element, an independent element. He may or may not take cognizance. There is an amendment to the law which says that before Mr. Judge you take cognizance, you must issue notice to the potential accused. Miss Natarajan only received a notice to come to the court and tell the court why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Number 3, any kindergarten and first year law student knows that without cognizance, no criminal case exists in the eyes of law. There is no criminal case merely if I allege something against somebody else without a cognizance taken. Number 4 is more absurd. You have rejected Ms. Natarajan's nomination on the non-existence of even cognizance, which means there is no criminal case which she could have disclosed. But you have done it at the first stage, whereas the section which I have just read to you, 33A, says that after cognizance, if it is taken, then there will be investigation. After investigation, there will be charge sheet. That is not enough. The section says after charge sheet, the judge must frame charges. Had the judge reached the stage of framing charges, she would be obliged to disclose.
It is a bizarre thing that the that the RO has rejected it, saying that there is cognizance. The word used is Sangyan in the RO's order. Sangyan means cognizance. There is no cognizance taken. Ultimately, also we pointed out to the Election Commission that they are having a huge reservoir of power under Article 324. It's a constitutional power. It is uncircumscribed power. It is inherent power. It is power to do justice and power to right wrongs. If a RO improperly throws out a nomination paper on the ground that the color of his hair is black or that he is resident of some other state, nobody has to wait to go to court. Nobody has to file an election petition and waste 3, 4, 5, 6 years. The main body which has 324 is sitting here, and that reservoir of powers to do corrective justice must be exercised by them immediately. That is what we have asked. This has been done by them in a Haryana precedent where the RO was wrongly rejecting 2 nominations. This has been done earlier by them in a Gujarat precedent. We have given all those notes and papers to them. We hope and trust that the EC will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. And they should, therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful, without law order. And it should be set aside immediately is our request. Sir, thank you very much. Sir, चुनाव आयोग ने क्या कहा? दिनेश जी, तो कांग्रेस डेलीगेशन की मुलाकात के बाद आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से एक गलती की वजह से नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। हालांकि एक्सेप्ट उन्होंने किया है कि गलती हुई है, लेकिन एक गलती की वजह से नॉमिनेशन कैंसिल होना, इस पर जरूर सवाल उन्होंने उठाए हैं। चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन कैंसिल होने वाले मामले में मुलाकात के बाद बाहर आए कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात अच्छे से विस्तार पूर्वक बताई। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिला कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल, रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला गलत कांग्रेस का इस पर कहना है। और साथ ही ये भी कहा गया कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन की मुलाकात के बाद मीनाक्षी नटराजन के नामांकन कैंसिल होने को उन्होंने गलत बताया है। अभिषेक मनु सिंघवी को अभी आप सुन रहे थे, और लोकतंत्र में सम्मान को लेकर ये अब आवाज बुलंद की जा रही है। मीनाक्षी नटराजन क्या कह रही है? आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज भी विश्वास है कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम इलेक्शन कमीशन से आपको मुलाकात है, आपको लग रहा है कि आज इधर बैठिए, जल्दी बैठिए। रहे हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और वकीलों के द्वारा इस पूरे मामले में जो भी उचित प्रयास होंगे किए जाएंगे। Outside the विधानसभा for action against Parimal Nathwani, but in Natarajan's case, the decision was taken yesterday only. How do you see this? Everything already told. Nothing else. ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. तो केसी वेणुगोपाल का कहना है कि सब कुछ अब पहले ही बता दिया गया है, अब और इस पर मैं क्या ही बताऊं। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचा था कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, और इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि जो मुलाकात हुई उसमें जो भी बात हुई उसका सिर्फ इतना ही हासिल वसूल है कि जो उन्हें ये बात सही नहीं लगी कांग्रेस पार्टी को कि मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है, और आगे आने वाले समय में भी इसमें कुछ और संभावनाएं फिलहाल कोई नज़र नहीं आती हैं।
लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक तरफ नॉमिनेशन रद्द करवाना उसका हल नहीं है। आप पूछिए, चर्चा हो रही थी, ये बिल्कुल चर्चा हो रही थी ना कि आप ये चुनाव जो नॉमिनेशन रद्द करवाते, ये उस समय का है जब अंदर निर्णय चल रहा था, सब लोग बाहर खड़े थे। सर, दिल्ली से ये अपडेट है कि वहां से भी अभी तक कोई बहुत बड़ी राहत की खबर नहीं है। देखिए, हम तो ये मानकर नहीं चल रहे कि हमको राहत मिल जाएगी, हमें तपना है, पर तपेंगे, क्योंकि देश के युवाओं के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। दिल्ली से आप लोगों के पास कोई इनपुट आया है क्या अभी तक, जो चुनाव आयोग में मुलाकात हुई? चर्चा चल रही है, क्योंकि उसकी रणनीति भी तैयार हो रही है, हमारी भी रणनीति तैयार हो रही है। अगर हमको जरूरत पड़ी दिल्ली कूच करने की तो दिल्ली भी कूच करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है? सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी है, और हमें यहाँ से भी जाना पड़े तो यहाँ से भी जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो विक्रांत भूरिया हमारे साथ थे, और दिल्ली से भी अभी तक कोई बहुत अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं आई है, और विक्रांत भूरिया भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ से भी दिल्ली अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से भी दिल्ली कूच करने का जो काम है वो करेंगे। कांग्रेस की अब पूरी उम्मीदें अगर कहीं टिकी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सबके बीच राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस का जो उपवास है वो यहाँ पे चल रहा है। आपको यहाँ तस्वीरों में जयवर्धन सिंह नजर आएंगे, जीतू पटवारी हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, उमंग सिंघार हैं, दिग्विजय सिंह हैं। सारे जो नेता हैं यहाँ पर, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उपवास यहाँ पे कांग्रेस का चल रहा है। तमाम सारे नेता जो हैं वो यहाँ पे संबोधित करने का काम कर रहे हैं, और हर कांग्रेस का नेता बार बार एक ही बात को कर रहा है, एक ही बात को कह रहा है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये सब जो हो रहा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। एक तरफ कांग्रेस भोपाल में उपवास पर बैठी है, दूसरी तरफ जैसा कि दिल्ली से अपडेट दिया जा रहा था कि डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सामने आया है कि वहां पे क्या कुछ बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं ने एक बात बहुत हद तक स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस की जो बड़ी उम्मीद है अब वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे फिर विवेक तनखा हो, कपिल सिब्बल हो, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे नेता जो हैं वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने का जो काम है वो करेंगे, और कांग्रेस इसके लिए अपनी पूरी रणनीति जो है वो यहाँ पर लगातार बना रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो धरना है वो यहाँ पर चल रहा है, और दिन भर आज यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर उपवास पर बैठने का काम करेंगे। और अब लगातार कांग्रेस अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को मोटिवेट करने का यहाँ पर एक तरीके से काम जरूर कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, एकता, एकजुटता का संदेश देने की बार बार बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से स्ट्रैटेजिकल एक चूक जो है वो जरूर हुई है। मीनाक्षी नटराजन के मामले में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक सीट अगर कांग्रेस गंवा देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से अब कोई राहत नहीं मिलती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि सियासत जरूर इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार उपवास कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि लोकतंत्र में विरोध करने के जितने तरीके हो सकते हैं उन सबको कांग्रेस पूरी तरीके से अपना रही है, और डेलीगेशंस भी आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो तैयारी है, जाहिर है आप रहिएगा हमारे साथ। और चूंकि अभी दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिली, जिसमें रवि अब जो बातें अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, तो एक तरह से वो स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है। वो कह रहे हैं कि एक गलती पर नॉमिनेशन कैंसिल होना ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जब उनसे सवाल किया गया कि चुनाव आयोग की तरफ से आपसे क्या पूछा गया, तो उनका कोई ठोस जवाब उन्होंने नहीं दिया और चले गए। और सूत्र बता रहे हैं कल इसी मामले को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें तमाम कांग्रेस के महासचिव, जो प्रभारी है सभी राज्यों के, वो और तमाम कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको दिल्ली तलब किया गया, उनको दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में चर्चा करनी है कल, और इसमें आगे क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ा एजुटेशन कांग्रेस प्लान कर रही है, और इसीलिए आनंद फानन में आज ही सबको नोटिस दिया गया और सबको बुलाया गया। कल आप 11 बजे पहुंचिए कांग्रेस इंदिरा भवन, कांग्रेस मुख्यालय में, वहां पर बैठक बुलाई गई है, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन जो बैठक को लबल आप अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि बैठक में जो मीनाक्षी नटराजन का प्रकरण है उस पर चर्चा होनी है, उस पर कैसे आगे एजुटेशन करना है उस पर चर्चा हुई। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज का है या फिर जो जवाब जिस तरह से कांग्रेस के जो सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने दिया, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कोई फौरी राहत मिलने वाली है चुनाव आयोग से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विड्रॉल का डेट है वो भी खत्म होने वाला है, तो ऐसे में जो भी फैसला करना है उनको जल्द करना है, क्योंकि अगर विड्रॉल का डेट खत्म हो जाए तो उनके पास कोई राहत की उम्मीद नहीं है।
तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ी रणनीति बनाना चाहती है और इसी बाबत तमाम जो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, उनको कल दिल्ली बुलाया गया। कल 11:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस केंद्र में बैठक होने वाली है। जी जाहिर है रवि, आप रहिएगा हमारे साथ। वासु के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार स्पॉट से जुड़े हुए जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। वासु, जो दिल्ली में हुआ उसके बाद मीनाक्षी नटराजन का बयान यह आया कि लड़ाई आगे जारी रहेगी। लड़ाई जरूर जारी रहेगी लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, ये बात स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल, देखिए अभी तक का तो यही आशीष अपडेट है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कल ही जो नामांकन है वो निरस्त हो चुका है मीनाक्षी नटराजन का। और आज जैसा कि रवि भी अपडेट दे रहे थे कि बहुत अच्छी खबर, कोई चुनाव आयोग में भी जब कांग्रेस का डेलीगेशन गया तो वहां से नहीं आई है। स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा या वकील जाएंगे, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, समय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये अभी भी जो है वो तमाम सारे सवाल बने हुए हैं। क्योंकि अब कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया कल दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अगर उसके पहले कुछ कांग्रेस के लिए राहत भरा हो सकता है तो उतना ही समय जो है वो अब करीब 24 घंटे का ही जो समय है वो बाकी है। नहीं तो कांग्रेस को इसी तरह सड़कों पर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे चलते रहेंगे। ये उपवास जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और इस तरीके के उपवास, इस तरीके के धरने प्रदर्शन ये कांग्रेस लगभग हर चुनाव, हर जब भी इस तरीके की कोई स्थिति बनती है उसके बाद करती है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी निराशाजनक बात यह है कि हर बार यही स्थितियां जो है वो पार्टी के लिए बनी रहती हैं। कई बार जीता जिताया मुकाबला जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है और इस राज्यसभा के चुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस के पास 62 विधायक थे, 58 की जरूरत थी जीत के लिए। कांग्रेस एकजुट रहती, चुनाव होता तो बहुत आसानी से कांग्रेस ये चुनाव जो है वो निकाल कर ले जाती। लेकिन आज हालात ये हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस सड़कों पर बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग के चक्कर काट रहा है। तो ये सारी स्थितियां कांग्रेस के लिए बार बार बनती है और इसके पीछे कांग्रेस के कई नेता भी अपनी भूल को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। जब मैं फूल सिंह बरैया से बात कर रहा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बात को कहा कि डमी कैंडिडेट ना उतारना एक चूक हो गई। यानी कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक चूक है वो यहाँ पर हुई है। तो ये तस्वीरें जो है वो बार बार बिल्कुल सामने आती है। चूंकि ये विषय एक ऐसा विषय हो गया है, क्रिकेटिंग अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो क्रिकेट में अब आप एक बार हिट विकेट हो गए हैं तो पवेलियन ही जाना एक ऑप्शन है आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। भले ही आपके अंदर बहुत अच्छा आपका ओपनिंग हो गया या बहुत अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब अगर आप हिट विकेट हो गए हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। आप दोनों रहिएगा हमारे साथ और इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आ रही है, ये दिखाते हैं अपने दर्शकों को। पार्टी हाईकमान का एक निर्देश था कि चूंकि हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और चूंकि जुडिक्शन दिल्ली का है तो आप लोग वहाँ पे ना करें, तो हम लोग आप सीधे धरने पे जा रहे हैं। जैसे रोशनपुरा जा रहे हैं सर उपवास में आप लोग? जी रोशनपुरा जा रहे हैं। दिल्ली से क्या अपडेट है, वहाँ पे आला कमान से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? अभी चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त का भी है, तो अभी आधे घंटे में सर वकील कौन होंगे, अधिवक्ता कौन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट? सभी जो संघवी जी है, अब तनखा जी है, सभी है, अपने रणदीप सुरजेवाला जी, सब लोग वहाँ पर पेश करेंगे। सर डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर एक सेफ से? ये एक अलग बात है, इसको आप चूक कह सकते हैं या ऐसा अभी तक कोई चलन रहा नहीं कि राज्यसभा में कभी डमी लड़ाए गए। है कि क्राइम नहीं हुआ लेकिन छिपाया तो गया। नहीं क्राइम नहीं है तो छुपाने की कोई बात नहीं। डमी कैंडिडेट ना उतारने वाली सर एक मिनट, डमी कैंडिडेट छुपाने वाली बात जो है सर, इसको आला कमान ने संज्ञान लिया है क्या सर? नहीं, अभी तो इसका कोई मैसेज नहीं है, वो आज शाम को पता चलेगा। विवेक तनखा जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये दिल्ली में पूरी इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। वहाँ चुनाव आयोग से समय भी लिया गया है और ये स्पष्ट है कि हर स्तर पर, चाहे वो लीगल हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे सदन में हो, हर स्तर पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरह से जो हमारी संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसका पूरी तरह से जो चीरहरण करने का काम भाजपा कर रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये विधायकों पर दाव कर रही थी कि ये बिक जाएंगे, नहीं बिके तो इन्होंने ऐसा पैतरा अपनाया। देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए?
जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझकर। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे? कांग्रेस के नेताओं से पूछे आप। तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास। और वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मौसम में अभी थोड़ी तब्दीली आना बाकी है। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है, आने वाले 24 घंटों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त मौसम की तपिश और भोपाल की राजनीतिक तपिश एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं टेम्परेचर के मामले में। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि टेम्परेचर जो मौसम का है वो थोड़ा कम हो गया है और राजनीति का टेम्परेचर जो है वो अब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हीट वेव मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है वो यहाँ पे चल रही है और आप ये तस्वीरें यहाँ पे जरूर देखते रहिए बार बार। कांग्रेस के नेता धरने पर, कांग्रेस के नेता उपवास पर, ये तस्वीरें मैं कह रहा हूँ बार बार आती हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कोई इस तरीके की स्थिति बनती है, कांग्रेस सड़कों पर ही जो है वो नजर आती है और कांग्रेस को इस बात को लेकर बहुत सोचने की, समझने की और मंथन करने की जरूरत है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जीतू पटवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, उमंग सिंगार हो, सारे नेता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उपवास रखा जा रहा है, 4 बजे तक उपवास पर जो है कांग्रेस के नेता यहाँ पर रहने वाले हैं और अपनी बात जो है वो नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव लड़ पाएगी, क्या मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन निरस्त हुआ है उसमें कुछ राहत कांग्रेस को मिल पाएगी। अब कांग्रेस की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं, आला कमान से जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, दिग्विजय सिंह। जाहिर है वासु, और जो कि परिस्थितियां अब पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ जा चुकी हैं, क्योंकि आपकी अपनी ही गलती की